हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो अगर हमको इंग्लिश भाषा में बोलना है तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अगर हमको हिंदी भाषा में बोलना है तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोलना है तो अपनी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन समझ के साथ बोल सकते हैं। और लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। जीसस फुलफिल्ड द राइटियस डिमांड्स of justice that consummated salvation for all mankind. Therefore, I pray for sinners around the world today that their hearts be open to the understanding of the gospel, to confess their faith in Jesus Christ, believing in their hearts that God raised him from the dead. And as they do, they are ushered into the new life in Christ. In Jesus' name, Amen. यीशु परिपूर्ण कर चुका है, परिपूर्ण कर चुका है धार्मिकता के लिए जो नियम थे न्याय के अनुसार, वह पूरा कर चुका है, जिसकी वजह से जिसके अंदर उद्धार सारे मनुष्य जाति का रखा गया था। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पापियों को जगत भर में आज अपने हृदय को खोल और समझ आ जाए सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए, और वह अपने विश्वास को यीशु मसीह में कबूल करे। विश्वास करते हुए उनके हृदय में कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, और जब वह ऐसा विश्वास के शब्द बोलेंगे तब उनके अंदर मसीह का नया जीवन प्रवेश कर जाए। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं रोमन्स 10 चैप्टर 8 वर्स से 13 वर्स, एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से इसे पढ़ना है। जॉन 3 चैप्टर 5, 6, 7 वर्स। रोमियो के 10 अध्याय 8 वचन से 13 वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ना है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 5, 6, 7 वचन, सारे वचन हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमन्स 10 चैप्टर 8 वर्स से 13 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन 8 वर्स से 13 वर्स। But what does it say? The word, God's message in Christ, is near you, on your lips and in your heart. That is the word, the message, the basis and object of faith which we preach. Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe, adhere to, trust in, and rely on the truth that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, adheres to, trusts in, and relies on Christ, and so is justified, declared righteous, acceptable to God. And with the mouth he confesses, declares openly, and speaks out freely his faith and confirms his salvation. The scripture says, no man who believes in him, who adheres to rely
adheres to, relies on, and trusts in Him will ever be put to shame or be disappointed. No one, for there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord over all of us, and He generously bestows His riches upon all who call upon Him in faith. For everyone who calls upon the name of the Lord, invoking Him as Lord, will be saved. एक्चुअली बहुत विस्तार करके यहाँ पर दिया गया है विश्वास किए हुए शब्दों को। और एक बार पढ़ेंगे हम। विस्तारित बाइबल है इंग्लिश में, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन, रोमन्स 10 चैप्टर 8 वर्स से 13 वर्स। बट व्हाट डज इट से? द वर्ड गॉड्स मैसेज इन क्राइस्ट इज नियर यू, ऑन योर लिप्स and in your heart. That is the word, the message, the basis and object of faith which we preach. Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe, adhere to, trust in, and rely on the truth that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, adheres to, trusts in, and relies on Christ, and so is justified, declared righteous, acceptable to God. And with the mouth he confesses, declares openly, and speaks out freely his faith, and confirms his salvation. The scripture says, no man who believes in Him, who adheres to, relies on, and trusts in Him, will ever be put to shame or be disappointed. No one, for there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord over all of us, and He generously bestows His riches upon all who call upon Him in faith. For everyone who calls upon the name of the Lord, invoking Him as Lord, will be saved. इसी वचन को अगर हम हिंदी में देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखा हुआ है। मैं इसको बाद में आपके सामने विस्तार में क्या क्या लिखा है वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे हिंदी रोमियो बाइबल में से, हिंदी BSI बाइबल में से, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 8 वचन से 13 वचन। हिंदी BSI बाइबल में से रोमियो की पत्री 10 अध्याय 8 वचन से 13 वचन। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुँह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 10 अध्याय 8 वचन से 13 वचन BSI बाइबल में से। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है।
क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अगर इसी वचन को हम विस्तारित बाइबल में से जो पढ़ा है उसके अंदर क्या ज़्यादा लिखा हुआ है यह मैं आपको बताती हूँ। 8 वचन में यह ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का संदेश मसीह में जो है उसको वचन कहा गया है, जो बिल्कुल हमारे नज़दीक है और हमारे होठों पर है और हमारे हृदय में है। और यह संदेश जो एक वस्तु और जो एक आधार है हमारे विश्वास का, जिसको हम प्रचार कर रहे हैं, ये 8 वचन में ज़्यादा लिखा है। और 9 वचन में जो विश्वास करता है, यानी जो चिपके रहता है परमेश्वर के उस सच्चाई से, जो उसके ऊपर भरोसा रखता है और उसके ऊपर टेक लेता है, ये वहाँ पर ज़्यादा लिखा है। 10 वचन में कि जैसे हमको परमेश्वर ने धार्मिकता के लिए बुलाया है, तो हमने धार्मिकता को घोषित करने के लिए और परमेश्वर से स्वीकार किए गए ऐसे लोग हैं। जब हम मुंह से कबूल करते हैं, तो यहाँ कबूल के लिए 10 वचन में ऐसा दिया है, जब हम खुल्लम खुल्ला अपने मुंह से बोलते हैं और एकदम सबके सामने आज़ादी से अपने विश्वास को जाहिर करते हैं। इस प्रकार से 10 वचन में लिखा है। और फिर हम उस निश्चितता को भी बताते हैं कि यही एक वजह है उद्धार का। और बस यही सब कुछ ज़्यादा करके लिखा था, जो मैंने आपको बता दिया वचन में ज़्यादा क्या था। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए जब विस्तारित बाइबल में आता है, तब BSI बाइबल में कुछ चीज़ें आसान और छोटा करके बताया गया होता है, लेकिन विस्तार में बहुत ज़्यादा उसके मतलब निकाल कर बताया गया था, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी पढ़ के बताया। कौन सा ज़्यादा लिखा है, बस उतना ही भाग मैंने आपको पढ़ के बताया। अगला वचन हम पढ़ेंगे जॉन 5 चैप्टर 'Ribantikamba usilarbaha asaskin bekabbaruhusa zire bekashira khasiralare बहुकुसे। यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 3 अध्याय का 5 से 7 वचन। यूहन्ना की पत्री जॉन 3 चैप्टर 5, 6, 7 वर्स हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जॉन 3 चैप्टर 5, 6, 7 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. और एक बार पढ़ेंगे John's Gospel, chapter 3, 5, 6, 7 verse. किंग्स जेम्स वर्शन में से। जीसस आंसर्ड, वेरीली वेरीली आई से unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel now not that I said unto thee, ye must be born again. इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5, 6, 7 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार
3 अध्याय 5, 6, 7 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5, 6, 7 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए जो वचन आज दिए हैं मनन करने के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अब फादर गॉड, आज ये वचन के अनुसार हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।